نجات کے خوبصورت دن میں آپ سب کو خدا یسوع کے نام سے سلام پیش کرتا ہوں۔ عزیزوں، کلام شیئر کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر آپس میں انٹریکشن کریں اور ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ سیکھیں۔ کوئی جماعت میں سے لوکا 23 باب اور اس کی 42 سے 42 سے 43 آیت جو ہے وہ پلیز پڑھ دیجیے۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزوں، یسوع مسیح کو درمیان میں جو ہے وہ کروسیفائی کیا گیا۔ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف جو ہے وہ دو قیدی ہم دیکھتے ہیں، لیکن آپ میں میرا کوشچن یہ ہے، آپ سب سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کہ کیوں یسوع مسیح کو درمیان میں ہی جو ہے وہ اس کو مصلوب کیا گیا یا اسے کروسیفائی کیا گیا؟ کیا وہ ایک وجہ تھی جس کو یسوع مسیح جو ہے بالکل ایک دم سینٹر میں جو ہے وہ اسے مصلوب کیا گیا؟ کوئی بھی آپ میں سے اگر جواب دینا چاہے۔ نو آنسر از اے رانگ آنسر، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ وجہ تھی جو یسوع مسیح کو درمیان میں جو ہے وہ مصلوب کیا گیا؟ شاید ہمارے گناہوں کی خاطر ہمارے درمیان آپ کھڑا ہو۔ یہ بھی آپ کا جواب درست ہے۔ کوئی اور اگر کچھ کہنا چاہے؟ چلیں میں بتاتا ہوں۔ عزیزوں، سب سے پہلی بات کہ یہ اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو کہ یسایہ 53 میں لکھا ہے، جہاں پہ یسایہ میں لکھا ہے کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اور شمار ہونے کے لیے آپ کو ان کے بیچ میں ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی بات جو میں نے سیکھی اور مجھے خداوند نے بتائی کہ یسوع مسیح کو بیچ میں مصلوب کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اسے اور زیادہ انسلٹ کرنا چاہتے تھے، وہ اسے اور زیادہ بے عزت کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ جب کوئی شخص دیکھے ان تینوں کو تو جانے کہ جو درمیان والا ہے وہی سب سے بڑا کفر بکنے والا ہے، وہی سب سے بڑا جو ہے وہ گنہگار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دو قیدیوں کے درمیان موجود ہے، اور عزیزوں میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ دو قیدی انسانیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک قیدی جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا اس رستے کو ظاہر کرتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتا ہے، لیکن دوسرا قیدی اس رستے کو ظاہر کرتا ہے جو موت کی طرف جاتا ہے۔ عزیزوں، انسان اپنے اندر رہ کر ایک بہت ہی وکٹ پلان کر رہا تھا، ایک بہت ہی بھیانک پلان کر رہا تھا یسوع مسیح کو جو ہے وہ اور زیادہ انسلٹ کرنے کے لیے، لیکن اسی وقت خدا اپنی قدرت میں کچھ ایسا پلان کر رہا تھا کہ اس نے یہ پلان کیا۔ اب ایک ایگزامپل دوں گا میں آپ کو۔ یہودیوں نے کیا کیا کہ یسوع مسیح کی صلیب پر ایک تختی لگا دی کہ یہودیوں کا بادشاہ، یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ، جیسس کرائسٹ the king of Jews۔ لیکن یہ تختی 3 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی گئی۔ جب یہ تختی جو کوئی پڑھتا تھا وہ ہنستا تھا، مسخرے اڑاتا تھا اس پر، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا گوسپل ٹریک ہی وہ تختی تھی، سب سے پہلی خوش خبری ہی وہ تختی تھی، کیونکہ جب اس کے دائیں اور بائیں والے دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے کہ کیا یہ واقعی یہودیوں کا بادشاہ ہے تو وہ سوچ پہ پڑتے تھے۔ ان دونوں نے یسوع مسیح کا مسخرہ اڑایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں آگے کہ ہوا کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب صلیب پر چڑھے تو انہوں نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ان دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک نے یہ بات اس کے دل پر لگی کہ کیسے ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے کہ ہمیں چوٹ پہنچائی جائے اور ہم کسی کو معاف کر دیں، اور چوٹ بھی کوئی ایسی چوٹ نہیں عزیزوں، یہاں سے یہاں نکل کر کیلیں آر پار ہوئی، پیروں پر کیلیں ٹھوکی گئیں، اور اتنا لہو لہان کیا گیا کہ بہت سارے رائٹرز اور بہت سارے ہسٹورینز یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی عام شخص ہوتا تو وہ صلیب اٹھاتے کہ وقت جو ویا دولوروسا سے جا رہا تھا، اور وہ اتنا بڑا رستہ ہے کہ وہ اسی وقت مر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ مرا، کیونکہ اس نے
अपना वो मकसद पूरा करना था अजीजों। वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। अजीजों, हम बात करते हैं कि एट द 11th आवर, हम ये बात करते हैं कि एट द 11th आवर दिस थिंग हैपेंड विद मी। हम यहाँ पर भी देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा की कुदरत में अपनी मोहब्बत, अपने प्यार और अपने फजल के वसीले उस एक कैदी को जो है वो बचा रहा है। हालेलुया। अजीजों, उस मरते हुए कैदी ने यीशु मसीह के वो अल्फाज सुने और उसकी जिंदगी तब्दील हुई। बहुत सारे लोग इस वाकये को जो बाइबल में जिक्र है इस कैदी का एज एन एग्जाम्पल और एज एन इंकरेजमेंट लेते हैं इस बात में कि अभी तो हमारे पास दुनिया में बहुत सारा वक्त बाकी है। हम जब डेड बेड पे होंगे ना, जब हम हॉस्पिटल में होंगे, उस वक्त हम यीशु को कबूल कर लेंगे, क्योंकि उस कैदी ने भी तो यही किया था। अजीजों, सैडली, दुख के साथ ये मैं बताता चलूं, एक खुदा का छोटा सा खादिम होते हुए कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदा आपके दिल और आपके ख्यालों को जानता है चीज़। लेकिन अगर आप अपने बिस्तरों पर हों और आप अपने तमाम गुनाहों का इकरार करें और अपने आप को नाचिज़ समझें और ये जाने कि आप खुद से कुछ नहीं कर सकते और अपने आप को यीशु मसीह के हवाले करें, तब आपको खुदावंद आपके डेड बेड से बचाने की कुदरत रखता है। अजीजों, मैं दोबारा एक बात शेयर करना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने आगे उस शख्स से कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस, जिसे हम इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं, और हेवन, जब कलाम मुकद्दस में फिरदौस और हेवन का जिक्र है तो वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह इससे कहता है कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इंग्लिश में जो वर्ड यूज हुआ है वो है वेरली। अब एक बात मैं आपको समझाता चलूं और कोशिश करूंगा समझाने की। जब इस वर्ड को हम ग्रीक में देखते हैं तो इसके मीनिंग है आमेन। और यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में ये फ्रेज, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मैं तुझसे सच कहता हूं, और इंग्लिश में आई टेल यू द ट्रूथ, 76 दफा इस्तेमाल किया इस फ्रेज को। और ये फ्रेज जब यीशु मसीह कहता था तो वो मैं तुझसे सच कहता हूं से डायरेक्टली इस तरह से नहीं कहता, वो ये कहता था कि जो इस फ्रेज के बताने का मकसद यीशु मसीह का ये था कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो अपनी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं और इस बात पर मैं आमीन कहता हूं। और यीशु मसीह यहाँ पर भी इस शख्स से जो है वो कहता है कि आमीन आमीन, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीजों, कितनी ही जरूरी बात है ये कि मरने से पहले हम उसके इस खूबसूरत प्रोमिसेस को सुने, क्योंकि इसी बायस जो है वो कैदी बचाया गया। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने अपनी जिंदगी में शायद ना देखा हो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दिस थीफ had a breakfast with the devil but later had a dinner with Jesus. So this was all because of his wonderful grace. Amen. Amen. मैं तुझसे सच कहता हूं आज कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा अजीजों। जब कलाम मुकद्दस में कोई भी बात दोहराई जाती है तो वो एक कंफर्मेशन होती है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जब फरौन को ख्वाब आए कि यूसुफ आके, जोसेफ आके उसके इस ख्वाबों की ताबीर को बताए और ये भी बताए कि ख्वाब क्या देखा, तो कितने ख्वाब देखे थे? फरौन ने कितने ख्वाब देखे थे? 2 ख्वाब देखे थे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अजीजों, जब कलाम मुकद्दस में किसी भी बात को 2 दफा दोहराया जाए तो वो खुदा की तरफ से एक आगाही होती है कि ये बात जो वो कह रहा है ये सच है और ये कंप्लीट होगी। फिरौन ने पहला ख्वाब देखा उन गायों का और दूसरा ख्वाब उस फसल का, और ये दोनों ख्वाब जो है वो यूसुफ ने उसे बयान किया और वो पूरे हुए। ठीक इसी तरह यीशु मसीह जब अपने अल्फाजों में कहता था ना कि मैं तुझसे सच कहता हूं आज, आमीन आमीन, वेरली वेरली, वो इस बात को जो है वो साबित करते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये सच होने को है और वो सच हुआ।
अजीजों, आखिर में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि इस कैदी की जिंदगी, और अगर हम इस पर गौर करें तो शायद ऐसी कुछ भी बात नहीं थी उसमें कि वो किसी भी बाइस इस मकाम तक पहुंच सकता। अगर हम आज बात करते हैं अच्छे कामों की, तो उसके हाथ और पैर तो ठुके हुए थे सलीब पर। कैसे करता कोई अच्छे काम? कैसे वो पहुंच सकता? सिर्फ और सिर्फ उसके ख्यालात और उसकी जुबान थी जिसने यीशु का इकरार किया और उस दूसरे कैदी को कहा कि हम तो अपनी खताकारों में जो है वो सजा पा रहे हैं, लेकिन इसका कोई कसूर नहीं, इसका कोई कसूर नहीं। और उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। चीजों आज और शायद आने वाले वक्तों में बहुत सारी ऐसी महफिलें होंगी, बहुत सारे ऐसे वाक़ये होंगे जिसमें हम सब मिलकर बैठेंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक बात और एक चैलेंज रखना चाहता हूं। अगर आज मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर आज आप अपनी आंख बंद करते हैं हमेशा के लिए इस दुनिया से, तो क्या आपके पास ये कॉन्फिडेंस है कि आप यीशु के पास जाएंगे? ये सवाल आपने खुद से करना, मुझे जवाब नहीं देना। लेकिन अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं में हो, तो अजीजों, हमें अपनी नजात को और यीशु मसीह को देखने की जरूरत है, जो आखिरी वक्त में भी आपको बचाने की कुदरत रखता है। लेकिन अगर हमारा जवाब हाँ में है, तो हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए मालिक हैं और हम बचाए दिए गए हैं। एक छोटी सी कहानी और फिर मैं बंद करूंगा। कहा जाता है कि जब कुछ लोगों ने एक वाकया बयान किया कि जब इट इज नॉट रियलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल कलाम में कहीं नहीं लिखा, तो मैं बताता चलूं कि जब ये कैदी खुदावंद यीशु मसीह के साथ गया, तो बताता चलूं कि यीशु मसीह ने अपनी जान 1 से 1.5 घंटे पहले दे दी थी, और उसके बाद इन दोनों की हड्डियां तोड़ी गई, यहाँ की टखनों की, ताकि वो मर जाएं। क्योंकि रोमन्स जो है वो हड्डियों को तोड़ दिया करते थे अगर सूरज गुरूब होने से पहले जो है वो कैदी नहीं मरते थे। यीशु मसीह क्योंकि इतना लहू खा चुका था, वो 1 से 1.5 घंटे पहले मर चुका था। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे कहा है कि मैं तुझसे कहूंगा तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो यीशु मसीह के बगैर तो वो फिरदौस में होने से रहा। तो किसी ने ये बयान किया कि यीशु मसीह जब इस कैदी के साथ फिरदौस में एंटर हुआ, पैराडाइज में, तो जब वो हेवन जाता है और वो देखता है कि बहुत सारे लोग खुदावंद की हम्द, सना और प्रस्तुति कर रहे हैं, और इस शख्स ने यीशु मसीह से पूछा कि ये लोग कौन हैं? यीशु ने जवाब दिया कि ये मेरे नबी हैं, यानी कि वो तमाम नबी अंबिया जो पुराने अहदनामे से जिनको यीशु मसीह अपने साथ ले गया इफ्सियों के खत के मुताबिक जो है वो नबी हैं। वो बड़ा ही दुखी हुआ और उसने कहा कि मैं इनमें से एक नहीं हूं। खैर, वो आगे चलते हैं। आगे चलकर वो देखता है कि बहुत सारे लोग फिर से जमा हैं और हालेलुया के नारे मार रहे हैं। कि उस कैदी ने यीशु से पूछा कि यीशु, ऐ नजात दहिंदा, ये लोग कौन हैं? यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे रसूल हैं। और उसने फिर दुख के बायस ये कहा कि मैं तो इनमें से नहीं हूं, मैं इनके साथ नहीं जा सकता। थोड़ी सी और आगे जाते हैं तो एक इतना बड़ा क्राउड होता है कि उसकी नजरें जहां खत्म नहीं होती तब तक वो नजर ही आते रहते हैं, और वो खुदावंद की हम्द और सना कर रहे होते हैं कि वो शख्स यीशु से पूछता है, यीशु, ये लोग कौन हैं? तो एक फरिश्ता यीशु के पास आकर और उस आदमी के पास आकर उसे कहता है कि देख, वो रहा दाऊद, देख ये रही रहाब, मैं इंतजार करता हूं। यीशु ने कहा, उस एंजल ने, उस फरिश्ते ने कहा कि देख ये रही मगदलीनी, ये रहा दाऊद, ये रहा साउल, ये सब वो लोग हैं जो गुनहगार थे और आखिरी वक्त में बचाए गए ताकि उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और ये सुनकर उस शख्स ने कहा और बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं इनमें शामिल होना चाहता हूँ। अजीजों, वो आया ही इसलिए था कि वो गुनहगारों को बचाए। इब्ने आदम का आना ही इसलिए था कि वो हम सबको बचाए। हम में से कोई भी
खुद से यीशु के पास जाने की हैसियत रखता ही नहीं। अगर आज मुझे किसी बात का घमंड है तो वो यीशु की सलीब पर है, क्योंकि उसने वो तमाम काम, उसने वो तमाम गुनाह अपने ऊपर उठा लिए ताकि मैं बच सकूं, ताकि आप बच सकें। खुदावंद इस पाक दिन पर आप सबको भारी बरकत इनायत फरमाए।